Good morning, students. Let's start your next chapter, chapter number 8, that's dissolution of partnership firm. So, we're going to begin this chapter on 28th of July. So, let's start with this chapter. So, today we'll be discussing the basic theory of this chapter. Okay, what is the basics of this chapter? So, let's start it. It's your chapter number 8, dissolution of partnership firm. Before we start with the chapter, let's understand the meaning of the word dissolution. What do you mean by dissolution? Dissolution means discontinuance of existing partnership among the partners. Okay, it means जो partnership चल रही है partners की उसको discontinue कर देना. But Indian Partnership Act says dissolution can be either of partnership की भी हो सकती है और dissolution can be partnership firm. Okay, till now you have done the dissolution of partnership like profit sharing ratio, admission of partner, retirement of partner, death of partner. That was just dissolution of partnership because firm continues. Now in this chapter you will do dissolution of partnership firm. Firm ही बंद होगी, firm has dissolved. So let's have a look on basic difference between what is dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. In dissolution of partnership, it changed the existing relationship between the partners, but the firm may continue its business as before. जो business है वो पहले की तरह ही चलता रहता है, लेकिन partners के बीच में relation change हो जाता है. Like नया partner admit हो गया, admission. So new profit sharing ratio has been started. So relation change, retirement of the partner, again composition of partnership change. So this is dissolution of partnership. On the opposite of that, what is dissolution of partnership firm? It means dissolution of partnership. All the partners in the firm has stopped working. Okay. Dissolution of partnership among all partners of the firm. जितने भी partners हैं सबने काम करना बंद कर दिया. In this case, the firm of the business firm comes to an end. जो firm थी उसका end हो गया. They have stopped working now. The firm is no more in working condition now. So that's the dissolution of partnership firm. This is very important from theory point of view. What is dissolution of partnership and what is dissolution of partnership firm? Now the next concept is what are the modes of dissolution of partnership? अब ये dissolution होती कैसे है? Which are the modes? Number one, dissolution by mutual agreement. Voluntary dissolution means all the partners decide amongst them, let's dissolve the firm, we don't want to work anymore. Second, it can be compulsory dissolution. Compulsory dissolution means situation becomes like this कि firm को बंद करने के अलावा और कोई option नहीं बचती है. Suppose insolvency of all the partners, that all the partners has become insolvent. सारे bankrupt हो गए, किसी के पास पैसा बचा ही नहीं, right? और business is unlawful. जो वो business suddenly कर रहे थे, that has become unlawful in eyes of the law. So you have to dissolve the firm. You didn't left with any option. Next is dissolution by court. There are certain situations, this is very important, dissolution of court. There are certain situations in which court gives order to dissolve the firm. Court order देखिए कि भाई साहब आप अपनी firm को बंद कर दो. वो कौन से केसेस में हो सकता है? Number one, partners becomes partners या partner या एक partner भी हो सकता है या सारे partner भी हो सकते हैं. Very rare case that partners become person of unsound mind. ठीक है ना, unsound mind का हो गया वो, his mind is not working properly. और जो पार्टनर है उनमें से कोई ऐसा पार्टनर है जो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है, मे बी ड्यू टू एनी रीजन वो अब काम करने के काबिल नहीं रहा है, पैरालाइसिस हो गया, कुछ भी हो गया. इन दैट केस ऑल्सो कोर्ट कैन गिव ऑर्डर टू डिसोल्यूट द फर्म. और पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट. अगर किसी भी पार्टनर या पार्टनर्स ऐसे पाए जाते हैं कि उनका कंडक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है विच इज अगेंस्ट द कोर्ट, तो भी कोर्ट ऑर्डर देती है टू डिसोल्यूट द फर्म. नंबर 4 इज डिसोल्यूशन बाय नोटिस. कई बार फर्म क्या करती है, दे डोंट वांट टू वर्क एनी मोर, दैट पार्टनरशिप इज एट विल. अपनी मर्जी से शुरू किए होते, अपनी मर्जी से खत्म करना चाहते हैं कि हमें काम नहीं करना हो, तो बाय गिविंग अ नोटिस, पब्लिक नोटिस, दे कैन डिसोल्यूट द फर्म. ओके. नेक्स्ट, by happening of any event.
ठीक है ना, अगर इनमें से कुछ हैपनिंग हो जाती है, कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी उन्होंने डीड में मेंशन किया हो, इट इज़ ऑलरेडी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। कई बार वो क्या करते हैं कि पार्टनरशिप डीड में वो ऑलरेडी मेंशन कर देते हैं अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी या हमारा ये वेंचर खत्म हो जाएगा, ओके, या हमारे टर्म 10 साल के लिए किया 20 साल के टर्म खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम पार्टनरशिप फॉर्म बंद कर लेंगे, तो उसके बाद उन्हें अपनी पार्टनरशिप फॉर्म बंद करनी पड़ती है। सो दीज आर द केसेस, दीज आर इंपॉर्टेंट, द मोड्स ऑफ डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कब कब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, देयर आर 2 सेक्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक 1932 का सेक्शन है 48, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न, ओके। अब ये 48 सेक्शन क्या कहता है? 48 सेक्शन क्या कहता है कि जब आपने फर्म बंद कर दी है, ठीक है ना, अब आपके जो अकाउंट्स पड़े, जो लॉसेस पड़े, उनको कैसे सेटल करना है। हाउ द लॉसेज शेल बी पेड। अगर फर्म के लॉसेज है तो कैसे पे कर रहे हैं, फर्म अगर लॉस में जा रही होगी तभी कोई बंदा फर्म बंद करता है। हाउ टू पेज दोस लॉसेज। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्टली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर आपके कोई पुराने प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं फर्म के, तो दिस इज द सीक्वेंस विच यू नीड टू फॉलो, यू कैन नॉट डिसकंटिन्यू द सीक्वेंस, दिस इज रिटन इन द पार्टनरशिप एक्ट। तो हर एक पार्टनरशिप फर्म को ये सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती है लॉसेस के केस में, अपनी मर्जी वो नहीं कर सकते हैं। अगर फर्म को लॉसेस होते हैं तो उस केस में सबसे पहले वो लॉसेस किस में से पे ऑफ करेंगे? आउट ऑफ द एनी ओल्ड प्रॉफिट्स, इफ दे हैव गॉट एनी ओल्ड प्रॉफिट उसमें से पूरा करेंगे। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, अगर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस पड़ा हुआ है, मेरा बैलेंस अलग है, मेरे दूसरे पार्टनर का बैलेंस अलग है, तो हम लॉसेस अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस में से पूरा करेंगे। नेक्स्ट लास्ट में बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जितना लॉस बच जाएगा इंडिविजुअली पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से लॉसेस पूरे करेंगे। अगर आप सबको याद हो, यू मस्ट ऑल हैव रेड कि इन पार्टनरशिप द पार्टनर्स हैव द अनलिमिटेड लायबिलिटी। अपने लॉसेस उन्हें अपने घर की प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के भी पे करने पड़ते हैं। नंबर 2, अब जो हमारे पास एसेट्स पड़े हुए हैं, जो फर्म के एसेट्स पड़े हुए हैं, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना, बिकॉज सपोज फॉर एग्जांपल हमने फर्म बंद कर दी, सारे एसेट्स बेचने के बाद हमें 15 लाख रुपए रिकवर किया। अब ये जो 15 लाख रुपए हमने रिकवर किया, उस 15 लाख को ये नहीं कि हम पार्टनर्स आपस में बैठेंगे, चल 5 तू ले जा, 5 तू ले जा, 5 मैं ले जाता हूँ, नहीं, हमारे सर पे लायबिलिटीज हैं which we need to pay off. This comes under section 48B, that was under 48A. ओके, सबसे पहले उसकी सीक्वेंस क्या है? आउटसाइडर्स की लायबिलिटी को पे करो, थर्ड पार्टी जो हमारे क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, वो पे करो। नंबर 2, अगर पार्टनर्स ने फर्म को कुछ लोन या एडवांस दिया हुआ है वो पे करो। थर्ड, पार्टनर्स को जो कैपिटल के बैलेंसेस है वो पे करो। अगर उसके बाद भी कुछ बच जाता है, वैसे तो नहीं बचेगा, वेरी रेयर केस कि उसके बाद भी आपके पास कुछ पैसा बचे, तो जो पैसा बैलेंस बच जाएगा द पार्टनर्स विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग देमसेल्फ इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। दिस वाज all about the assets which they have to distribute among themselves. This was under section 48B. एक और सेक्शन हमारा है सेक्शन 49 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वो क्या कहता है? उसने उन्हें डेट्स को, डेट मीन्स जो हमने उधार लिए हुए हैं, ठीक है ना, 2 पार्ट्स में बांटा है। एक पार्ट में वो डिस्कस कर रहा है फर्म्स डेट, एक पार्ट में डिस्कस कर रहा है प्राइवेट डेट। अब फर्म डेट क्या है? विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर, जो पूरी फर्म में, फर्म कैसे बनती है? A, B, C तीनों पार्टनर से मिलकर बाहर आउटसाइडर्स को देने हैं। प्राइवेट डेट मीन्स सिर्फ A का या सिर्फ B का या सिर्फ C का, विच ए पार्टनर ओज टू हिज पर्सनल कैपेसिटी। A ने बाहर से कोई लोन लिया हो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए, वो उसका प्राइवेट डेट है, वो उसका फर्म का डेट नहीं है। सो डू नॉट मिक्स दिस बोथ डेट। ये A, B, C तीनों ने फर्म ने मिलकर लोन लिया था या जो उनकी लायबिलिटीज थी, डेट थे, ये प्राइवेट उसका डेट है। अब जो फर्म की प्रॉपर्टी है, आप बताओ मुझे, जो फर्म की प्रॉपर्टी है, जब फर्म बंद हो गई है तो वो सबसे पहले किसके डेट्स पे करेगा? पार्टनर के या फर्म के? क्वाइट ऑब्वियस, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट, जो फर्म के डेट है वो सारे पे करेगा। अगर कोई सरप्लस बच जाता है,
ठीक है ना। शेयर ऑफ ईच पार्टनर्स अप्लाइड इन पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट, जो हर पार्टनर का शेयर होगा, जो ए का शेयर होगा, बी का शेयर होगा, सी का शेयर होगा, वो शेयर से वो अपने प्राइवेट डेट को पे करेगा, ठीक है। और अगर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जैसे ए ने लोन लिया था, ए की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचे, ठीक है ना, वो सबसे पहले घर के डेट पे करेगा या फर्म के डेट पे करेगा? क्वाइट ऑब्वियस, पहले वो घर का बिजली का बिल, घर की जो उसके जो भी खर्चे हैं, घर के किस्त की, घर के मकान की किस्त हो सकता है, एनीथिंग लाइक दिस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही पे हिज प्राइवेट डेट। उसके बाद बिकॉज हिज लायबिलिटी इज लिमिटेड, अगर फर्म की लायबिलिटी फर्म से पूरी नहीं हो रही है, फर्म की लायबिलिटीज फर्म से पूरी नहीं हो रही है, तो वो फर्म की लायबिलिटीज किससे पे करेगा? उसके प्राइवेट डेट से। इफ लायबिलिटी एक्सीड्स देन एसेट्स इन द फर्म, अगर फर्म की लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा है तो। क्लियर? दिस वाज अंडर सेक्शन 49। अब इस चैप्टर में आपने पढ़ना क्या क्या? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फर्स्ट, एक तो इसमें आपने पढ़ना है रियलाइजेशन अकाउंट, एक पढ़ना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। सिर्फ ये 4 चीजें पढ़नी है। ये तीनों तो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। दिस इज अ न्यू थिंग दैट यू विल लर्न इन दिस चैप्टर, राइट? नाउ व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? ओके, आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट का एक दूसरा नाम भी है विच इज कॉल्ड रिकवरी अकाउंट, है ना। अब भाई ये रिकवरी क्या है? पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट की नेचर क्या है, ठीक है ना? इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट बनता है जब फर्म डेजोल्यूट होती है, जब फर्म बंद होती है, ठीक है ना। और इससे जो भी हमें प्रॉफिट और लॉस होता है वो क्या करते हैं, हम पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो आई जस्ट गिव यू लिटिल इंट्रोडक्शन व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। अब जब फर्म बंद हो गई है, डू यू थिंक जो हमारे पास जो एसेट्स पड़े हैं उनको रखने का कोई फायदा है? नो, दैट्स ऑफ नो यूज। जो भी हमारे फर्म के एसेट्स पड़े, जब फर्म ही बंद हो गई है, उसमें जो मशीन पड़ी हुई है, जो हमारे फर्नीचर पड़ा हुआ है, इट्स ऑफ नो यूज। तो फर्म क्या करती है? वो कहती है कि सारे एसेट्स को करो इकट्ठा, उसको हम बेच देंगे, उसको बेचने के बाद जो हमें पैसा मिलेगा उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे। अब कैश में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ फायदा होगा ना। ऐसे एसेट्स को पड़ा रहने से क्या करेंगे? मशीनरी जब काम ही नहीं करना तो मशीनरी रखने से फायदा क्या, ठीक है ना। और बिजनेस है तो उनकी लायबिलिटीज भी होंगी। तो वो क्या कहते हैं, जो कैश आएगा उससे हम अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, ठीक है ना। जो एसेट्स को बेच के सारे एसेट्स को इकट्ठा करेंगे, उसकी रिकवरी करेंगे, बेचेंगे या तू ले ले या पार्टनर खुद भी ले जाते हैं, ओके, पैसे देके, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। उनसे वो अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद फिर भी जो पैसा बच जाएगा, ठीक है ना, दैट विल बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। अब सारे एसेट्स को वो रिकवर करेंगे। रिकवरी का मतलब है कि सारे एसेट्स उठाएंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के रख लेंगे। एसेट्स को बैलेंस शीट में रखा है, ठीक है ना। बैलेंस शीट से सारे एसेट्स उठाने हैं, सारे एसेट्स उठा के हमने कहाँ रख देने हैं? रिकवरी अकाउंट में, दैट्स रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे सारी लायबिलिटीज उठानी है, सारी लायबिलिटीज उठा के कहाँ रख देनी है हमने? रिकवरी अकाउंट में, दैट्स रियलाइजेशन अकाउंट में रख देनी है, ठीक है ना। उनका बैलेंस हमने क्या करना है? खत्म करना है। अब एसेट्स का बैलेंस खत्म करने के लिए क्या जर्नल एंट्री होती है? क्लोज ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक। कैश और बैंक के अलावा आपका कोई एसेट है उसको खत्म करना है। अब एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अब अगर उसका बैलेंस खत्म करना है तो मैं उसको क्या करूंगी? क्रेडिट, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ट्री एसेट्स। मैंने एसेट्स को कर दिया क्रेडिट और सारे एसेट्स को मैंने कहा रिकवरी में डाल दिया। जैसे एक गोदाम सा बना लिया, रियलाइज उसमें फेंक दिया कि ये रिकवरी में जाएगा, ये रिकवरी में जाएगा, ये रिकवरी में जाएगा। रियलाइजेशन को डेबिट कर लिया। एसेट्स डेबिट थे, यहाँ क्रेडिट कर दिया, तो एसेट्स का बैलेंस हो गया खत्म। अभी बेचे नहीं है, रिमेम्बर, ये हमने अभी सेल नहीं किए हैं, सिर्फ उठा के रिकवरी में रखा है कि इसको अभी हमने बेचना है, ठीक है ना। ऐसे सारी लायबिलिटीज को खत्म करेंगे। लायबिलिटीज को खत्म करने के लिए क्या जर्नल एंट्री होती है? लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। उनको खत्म करने के लिए क्या करूंगी? डेबिट करूंगी। जब क्रेडिट डेबिट आपस में होगा तो, ठीक है ना, उसका बैलेंस क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। सारी लायबिलिटीज को उठाई, उसको रियलाइजेशन, एक ही अकाउंट बना दिया रियलाइजेशन। एक कमरे में रख दिया एसेट्स और दूसरे कमरे में रख दिया लायबिलिटीज। तो क्या जर्नल एंट्री बन गई?
सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और जो वैल्यू लिखनी है, अब हम ये कहाँ से उठा के ला रहे हैं, बैलेंस शीट से उठा के ला रहे हैं। तो जब बैलेंस शीट से उठा के ला रहे हैं तो कौन सी वैल्यू पे लिखेंगे, बुक वैल्यू में। कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू पे। ओके, फॉर टुडे आई थिंक दिस मच इज इनफ. Rest of the journal entries we'll do tomorrow. Please go through all the basic concept. ठीक है, meaning of realization. We'll discuss rest of the concept tomorrow. Go through it and kindly revert back to the video. Thank you. Have a nice day.